Hi everyone, good morning, and it is such a pleasure to meet you all in the morning 10 a.m. Transform series. I'm Dr. Sumer. I have with me Dr. Deepthi, and today we'll take your queries. And Right. as well as I wanted you to be ready for the 11 a.m. NEET PG marathon today at DAM's YouTube channel. We'll do a marathon revision for NEET PG. Beta, be there and get your friends also there. है ना? कोशिश करनी है कि इंडिया का सबसे बड़ा मैराथन रिवीजन इवेंट इसको हम बनाएं. We'll start at 11 a.m. with me, beta. Yes, very good morning to everyone. And yes, we are getting closer to the exam. And what do we want to do close to the exam? Number one, we want our students to stay very focused, right? बहुत सारे negative thoughts आते हैं दिमाग में. So we want to convert those thoughts into productive work. And that's why we thought that we would do the marathon session. क्योंकि उससे क्या होता है ना, you are cutting the noise that goes on in your head, right? And you convert it into productive work with the faculty. Now, as a part of the faculty, everyone is going to try and do their best, right? We've already covered things up for you in DVT, in live rapid revision, in various MCQ series. We have already done everything possible. So this is going to be an effort from our side just to keep you aligned so that at least, as I said, 50% of the paper should come reflexly to you. Okay? Okay, and I'll just quickly add slides here. Yesterday I put on my Insta story that what are your questions for us for the daily transform. I had a few queries. एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर I am getting 145 correct in my GT. This is step down from my previous mock of 163 and CBT of 150. What should I do? Should I be worried? देखो बेटा, हर एग्जाम एक अलग एग्जाम होता है और कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो शायद आपके वीक थे. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टॉपिक आपके वीक थे एंड बाय चांस यू गेट अ पेपर विच इज स्लाइटली ऑन अ टफर साइड एज पर योर पर्सपेक्टिव. बट द गुड थिंग इज ये आपका यहाँ पे होना ज्यादा जरूरी है, ऐसा एग्जाम में नहीं होना चाहिए. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल सो दैट कंसिस्टेंसी आ जाए. शुरू में क्या होता है, कई बार हम अप एंड डाउन आ जाता है क्योंकि कोई सब्जेक्ट हमारा अच्छा होता है, कोई कमजोर होता है, तो वी गेट दैट अप एंड डाउन. लेकिन बाद में क्या होगा, इतनी गलती करने के बाद धीरे धीरे यू बिकम मोर कंसिस्टेंट. सो आई सी अ लॉट ऑफ यू हैव द सेम क्वेरीज, Sakshi also, Priyanka also, and I think the answer is that don't be afraid of this happening. It is good that it happens in the grand test, otherwise it would have happened in the real exam. Absolutely yes. और प्लीज रिमेम्बर, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि मैम अभी एंड टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर में रोने का मन करता है. नहीं यार, ऐसे डोंट फील इट दैट वे. इतना प्रेशर मत लो. आप प्लीज अंडरस्टैंड करो कि जब आप पेपर को बिना प्रेशर के दे के आओगे तो आप जरूर अच्छा करोगे. देयर इज नथिंग लेस दैट यू हैव, राइट? यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स. यू ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड, and at this time, all that you should be filled up with. Very soon I'm going to go to the other side. Please welcome what is coming your way. Okay, think it like that God is always there taking care of you, and if God is sending you an opportunity, it becomes your karma to accept it and give your best shot. देखो, भगवान जी सिर्फ opportunities दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे ऊपर है कि हम उसको कितनी शिद्दत से करते हैं, हाउ ट्रूथफुली वी डू इट, हाउ मच हार्ड वर्क वी गिव टूवर्ड्स इट. सो डोंट से नो टू अपॉर्चुनिटीज एंड डोंट बी सैड दे आर कमिंग योर वे. है ना? स्टेटस को सबको अच्छा लगता है. क्यों? हम बैठे हैं. डेफिनेटली डॉक्टर दीप्ति, देयर इज अनदर क्वेरी. आई थिंक जिस डायरेक्शन में आप अभी बता रहे हो उसी में उसको ऐड कर देते हैं. एक बच्चा कह रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, व्हाट इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग इन द एग्जाम. क्या कहते हैं मैम? ऐसा नहीं होगा. इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि हाउ यू लर्न हैज टू बी इम्पोर्टेंट. हमेशा कनेक्शंस बना के पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट्स बना के पढ़ा जाता है. एंड आई एम श्योर इफ यू आर विद अस, you know that we have built your concept strong, and now you are very well prepared to apply those concepts. हाँ, जो चीजें हम सिर्फ मगअप करते हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है. बट अदर देन दैट,
एंड कुछ सब्जेक्ट अपने आप में भी वॉलेटाइल होते हैं, मगर वो सबके लिए बराबर हैं। So what I would say is have trust, have faith that you have done it conceptually, you know your basics, and now you're just going to apply. ठीक है? एक कह रहा है बच्चे का क्वेश्चन था कि सर पास्ट ट्रॉमा है फेलियर का, रिवीजन करने के बाद भी लग रहा है पता नहीं क्यों क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। बेटा आई ऑलवेज इफ यू रिमेंबर इन एवरी ट्रांसफॉर्म आई हैव टोल्ड यू, जो पहले हो चुका इट इज मोर इन योर हेड देन इन रियलिटी। वो तो हो चुका है, इट्स मोर लाइक अ मेमोरी विच इज पुलिंग यू बैक। एक बार उससे आजाद होना जरूरी है। देर आर ओनली टू मेथड्स टू गेट आउट ऑफ दैट पास्ट ट्रॉमा। नंबर वन, forgive yourself for whatever happened in the past. Okay, जोर से बोलेंगे आई forgive myself for any past mistake, और इसको बार बार रिपीट करेंगे। सो यू हैव टू क्लोज द सर्कल। दूसरा तरीका है नाउ गेन सम टाइनी विक्ट्रीज। कुछ छोटे छोटे विक्ट्री लाने की कोशिश कर। कभी डेली क्विज में जीत जा, कभी केस ऑफ द डे ठीक कर अपना डैम्स के ऐप के ऊपर जाके, कभी टीचर को आंसर दे। ओके, सो दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज, अब आप अपना करियर बना सकते हो, बट यू नीड टू कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशन। अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है और जो परिवार की एक्सपेक्टेशन है सबको हटा दे। एक बार सोच, मुझे मेरा अच्छा करना है, मेरा बेस्ट करके आना है, दैट इज द की। Yes, and nobody, please understand, nobody. And I am a mother also, I am a teacher also, I am a faculty also, I've worked in government hospitals also, private also. Please understand, nobody ever is going to ask your marks or your ranks. ये एक myth है, एक वेब है, एक तरीका है कि आप अपने आप अपना बार बड़ा करो, ठीक है? Eventually it comes to how clearly are you able to apply what you have learned in med school? Yes, number one, सबसे बड़ी बात। दूसरी, how much skills you have, ठीक है? आप प्रैक्टिस करते हो, स्किल्स डेवलप करते हो, बढ़िया डॉक्टर बनते हो, ठीक? तो पहला जो मेड स्कूल में पढ़ा है, क्या वो मैं अपनी रियल लाइफ में पेशेंट्स पे अप्लाई कर पाती हूँ कि नहीं? दूसरा, am I good with my skills or not? तीसरा, am I empathetic or not? ठीक है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एक डॉक्टर की डेफिनेशन में आते हैं। नॉलेज एंड टू बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज। टू, skills, we have to keep harnessing our skills, we have to keep getting better, we are dealing with human life, right? And third, empathy, ठीक है? So please भूल जाओ, एग्जाम आएगा, रैंक आएगी, आप सब पीजी करोगे और थोड़े ही देर में वो सब मैटर नहीं करेगा। इट्स सैड, जिस रैंक के लिए हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, एक दिन का खेल होता है, ठीक है? अच्छा, एक उसके और ना बाद क्वेरी है जो मुझे लग रहा है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरा ना कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने रिव्यू करते समय मैंने आंसर चेंज कर दिए और वो बाद में गलत हो गए, अब मैं क्या करूं? सो इम्पोर्टेंट थिंग याद कर लो, इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लासेस और योर डीवीटी और योर ग्रैंड टेस्ट और सीबीटी और मैराथन, go with the first instinct, don't mark for review, don't change the answer, ओवर थिंकिंग से आंसर गलत हो जाएगा। नंबर टू रिमेंबर करना, इफ इट इज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, try to eliminate before you make the educated guess. These are the two rules which help you to solve a lot of silly mistakes. एब्सोल्युटली, मैं दोबारा बोलूंगी, अगर आप मुझे पूछोगे मैम एक ट्रांसफॉर्म सेशन जो आप रेकमेंड करते हो, हमने तो अपनी तरफ से सारे अच्छे करे हैं, बट फॉर योर एग्जाम पर्पस एक ट्रांसफॉर्म सेशन मैंने और डॉक्टर समीर ने किया था, हाउ टू मेक एन एजुकेटेड गेस बाय द गेसेट टेक्निक। मुझे लगता है वो सब बच्चों को देखना चाहिए। It definitely prevents you from making silly mistakes, at least reduces them by a lot, and it gives you a good MCQ skill, ठीक है? तो it is a good transform session to watch close to the exam, okay? अच्छा, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी और दी थी, व्हाट टू रिवाइज इन द लास्ट वीक, व्हाट नॉट टू रिवाइज इन द लास्ट वीक। ओके, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये बोलूंगी, डीबीटी इज योर प्रायोरिटी, किसी भी बच्चे का, राइट? अगर आपको लगता है आपका डीबीटी कुछ सब्जेक्ट का रह गया है, प्लीज उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है? डीबीटी शुड बी डन थरली। सेकंड, अगर आपने अपनी कोई रॉन्ग डायरी बनाई है, बिकॉज दोज आर योर पर्सनलाइज्ड वीक थिंग्स, डीबीटी इज समथिंग which we want as teachers, we want you to definitely know.
रॉन्ग डायरी इज समथिंग विच यू नो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तीसरी चीज व्हाट आई वुड से इज पीवाईक्यू का बाप। इफ यू हैव सीन द वीडियो वंस, यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स दैट आर अंडरनीथ इट, और पीवाईटी का पीडीएफ विच इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ पीवाईक्यू का बाप, right? So these are excellent resources, very concise, that you should be doing in the last week. Definitely. And I have one more query. Last 5 days, I think this is very important query. I took it on purpose. यार मैंने पूरे साल में नहीं पढ़ा, अब मैं 5 दिन में क्या पढ़ूं? आई थिंक डीवीटी उसका आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है डीवीटी कर ले, इट विल गिव यू अ रियलिस्टिक चांस फॉर द नीट पीजी एग्जाम। डीवीटी इज द ओनली थिंग विच विल हैव यील्ड ऑल्सो। मतलब समझने की कोशिश करें, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी मार्केट में जो आप एक दिन में भी कर सकते हो, लेकिन उससे पेपर में कुछ नहीं आएगा। DVT has maximum strike rate. This is my recommendation for if you are in this boat at this stage. एक अच्छा, मैं एक रणजीत जी बच्चा आपके कह लिए रहा क्वेरी है, कर रहा हूँ। एक क्वेरी है कि रिजल्ट की घबराहट हो रही है। एक इसका बच्चे आप मेरे ख्याल से डॉक्टर दीप्ति आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने बताया ना, रिजल्ट की घबराहट भी और एंजाइटी भी और हैप्पीनेस भी सब एक दिन लास्ट करती है बेटा जी, है ना। उसको अपना गोल, अपना लक्ष्य मत बनाओ, just give your best. I know as a competitive exam, unfortunately we have to talk about ranks, but in the long run, just take this as a gateway to your next zone in life. It is nothing more than that. ठीक है, ट्रुथफुली करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ओके। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों को क्वेरी है कि सर मैं पढ़ तो नीट पीजी 2026 के लिए रहा हूँ, 2025 में ऐसे ही दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा 2026 में कोई पैटर्न बदल जाए या डिफिकल्टी बदल जाए या सीटें कम हो जाए या कंपटीशन बढ़ जाए? आई थिंक ऐसा ये सब आपके इल फाउंडेड आपके थॉट्स हैं। एवरी ईयर गवर्नमेंट इंक्रीजेस द पीजी सीट। ये तो पिछले 15-25 साल में मैंने देखा, हर साल पीजी सीट बढ़ती हैं। सो देर इज नो डाउट कि अगले साल पीजी सीट थोड़ी बेटर होंगी। एग्जाम पैटर्न मोर और लेस कंसिस्टेंट है, मोर और लेस नीट पीजी का पैटर्न कंसिस्टेंट है। लास्ट ईयर थोड़ा टफ था, तो आई एम फीलिंग कि उसी तरह का रहेगा और अगले साल भी उसी तरह का रहेगा। सो इट इज लाइक ये फैक्टर्स को आप अपने ड्रॉप लेने के कारण में मत जाओ। ड्रॉप आपको तब लेना चाहिए जब आपको पता है कि आपने तैयारी नहीं की है और आपको आपके मन की ब्रांच नहीं मिल रही है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा तैयारी कर चुके हो, आप पूरी मेहनत कर चुके हो, तो अलग तरह से सोचेंगे। लेकिन आपके केस में मुझे लगता है बच्चे आपने अभी पढ़ाई नहीं है, तो इट इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पेंडिंग वन मोर ईयर। ऐसे सोचते हैं अगर मैं 90 साल तक जिंदा रहा तो 6 महीने एक्स्ट्रा जा गए क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इट, बट एटलीस्ट आई विल नॉट हैव रिग्रेट फॉर नेक्स्ट 70 years ऑफ माई लाइफ। अच्छा, आप किसी कोई कोई बच्चा बोल रहा है कि रॉन्ग डायरी बहुत बड़ी हो गई, अब क्या करें? बहुत सिंपल बात है, अभी रॉन्ग डायरी में से सिर्फ वॉलेटाइल वाला पार्ट देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। रॉन्ग डायरी में से अभी इन लास्ट स्टेज में आपने, यू विल जस्ट सी योर वॉलेटाइल वाला पार्ट, नथिंग एल्स। अब नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके एवरीवन, आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज take a really deep breath. Close your eyes, take a deep breath, okay? Calm yourself down and tell yourself, I've been preparing for this and I'm well prepared. Okay, can you all tell yourself this? Sab bachche, okay? And I can feel your anxiety. We've been in your position and I know how difficult it can be to sustain yourself. But that's what you have to learn in life, to sustain. मुश्किलें आएंगी और चली भी जाएंगी, you have to simply sustain. So सब लोग सिर्फ मेरी तरह, you'll close your eyes, you'll take a really deep breath, okay, and just tell yourself that I have been preparing well and I'm going to do well come what may. Can you tell yourself this? कि आप अच्छा करोगे ही करोगे, इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। घबराना बंद करो, ठीक है। मैंने कल भी ये बोला सच था, बात है कि जो आप अभी कह रहे हो ना कि मैं सब भूल जाऊंगा, मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, इट इज नॉट लाइक ऐसा होगा नहीं। ऐसा सिर्फ आपका एंजाइटी है जो आपको डरा रहा है। यू विल डू गुड, आप अच्छा करोगे। जस्ट कीप रिमेम्बरिंग, याद है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कीप टेलिंग योरसेल्फ। बताया था ना मैंने, ब्रेन इज योर सर्वेंट। जो बोलोगे वो करना शुरू कर देगा। आप बोलोगे नहीं होगा, उधर प्रूफ करना शुरू कर देगा। आप बोलोगे हो जाएगा, उधर प्रूफ करेगा। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट थिंकिंग, यू विल डू योर बेस्ट ऑन द थर्ड। a calm mind is able to tackle situations, in a much better way as compared to an anxious mind. ठीक है?
एंग्शियस जब हम होते हैं तो हमारे एक्शंस आर नॉट अलाइंड टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब हम देखो, हर चीज का एक रिस्पॉन्स हो सकता है, एक एंग्जाइटी हो सकता है और एक हो सकता है हम अपने आप को काम करके सोचें। दोनों ही चीजें लोग करते हैं, मगर क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं तो हम जो एक्शंस ले रहे हैं दे मे नॉट बी दी सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो मेरी बात? right? So it is going to consume a lot of energy, but it may not still give you the right solution. So इसीलिए you have to calm your nerves. As doctors, you will have to do it time and again. Yes, believe me, I have seen such situations in the emergency जो मैं अभी भी जिसके बारे में सोचती हूँ तो I have goosebumps कि how did I even manage that? ठीक है? So you also have to tell yourself this exam is just way of preparing you. You have to have the strength, okay, to go through tough situations. And believe me, ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक पेपर है बेटा जी। जब रियल आदमी, पर्सन, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, औरत आपके सामने खड़ी होगी एंड यू हैव टू टेक केयर, तब क्या करेंगे? है ना? तब क्या करेंगे? तो प्लीज लर्न टू काम योर सेल्फ डाउन एंड यू every time you have to tell yourself you are well prepared. इतने सालों से आप अपने आप को प्रिपेयर करते आ रहे हो, ठीक है, टू बी गुड डॉक्टर्स, टू बी एबल टू गिव सर्विस टू पीपल, टू बी एबल, एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल, राइट? सो हर बार, आज के लिए नहीं है ये, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी आगे पीजी लाइफ के लिए भी है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द सेम phases. I was and probably still an anxious person because I am also always wanting to do my best. And if I'm not able to do my best, it unnerves me. Yes. But more important than doing your best at that time is presence of mind. Is only then you will be able to do your best. When we are anxious, we don't have the presence of mind. ठीक है? सो अब आप सब ये सोचोगे, इतने साल से आप बहुत तैयारी कर रहे हो और अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो टू बिकम अ पोस्ट ग्रेजुएट। आपके कंधों में इतनी ताकत है कि आप वो भार कैरी कर पाओ, द भार ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू टेक केयर ऑफ देम। ओके, सो डू नॉट वरी एट ऑल। एज आई ऑलवेज से, यू आर नॉट जस्ट आवर वॉरियर, यू आर ऑल्सो आवर लेगेसी। ठीक है? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। लोग अपनी लेगेसी किसको बनाते हैं बताओ? किसी को भी बना देते हैं क्या? नहीं बनाते। किसको बनाते हैं? जिन पे उनको भरोसा होता है कि यार ये कर सकते हैं, ये मेरी जगह ले सकते हैं, इनके बाद हम रिटायर हो सकते हैं, ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमारी लेगेसी हो, तो आप हो। You are your good hands and you will save not just people, yourself as well. Okay? So no more ghabrahat. Calm down everyone. Okay? I think now you should have a good productive day ahead. अभी एंजाइटी नहीं करेंगे, आउटकम के बारे में नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे सब भूल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस, लेट्स कीप वर्किंग हार्ड, कि हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। आप नहीं भी कर पाओगे तो हम करवाएंगे, चिंता मत करो। 11 बजे शुरू करूंगा मैं, अभी मैं भाग रहा हूँ स्टूडियो की तरफ। 11 बजे पहुंचेंगे, शुरू करेंगे रेडियोलॉजी के साथ नीट पीजी मैराथन फॉर नीट पीजी 2025 बाय डैम्स। भूलना नहीं, मिस नहीं करना। टीचर साथ में बैठ के पढ़ लेते हैं, साथ में बोलते जाना, बोल बोल के पढ़ेंगे, साथ में मिलके पढ़ेंगे बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट। और सर के बाद आऊंगी मैं और लेकर आऊंगी इमेज बेस्ड डिस्कशंस जो हमने इकट्ठे करे हैं आपके लिए। सो डोंट वरी, हम सिर्फ एक दिन को प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, तो कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है? चलो, टेक केयर एवरीबॉडी। मैराथन में आएगी, लेकिन कोई भी बच्चा सायरा की तरह रोएगा नहीं, रोने की बात नहीं है। इट्स अ हैप्पी मूवमेंट, आप अच्छा करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय बाय।